और आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है इंडिया बाउंडलेस, व्हाट मेक्स इंडिया सो बाउंडलेस। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। It is an idea that is immortal, an emotion that cannot be captured. It's a thought that is embraced, and it's a way of life that is cherished. The values and ideals of being Indian migrate the oceans. They celebrate the culture of diversity, yet are unique and personal. We take you on a journey that unravels how and why India pulsates in the heart of the world. Through the stories of ordinary people, we explore how the soul of a nation exists outside its own boundaries and what makes India so boundless. On a beautiful September morning in 1893, the city of Chicago hosted the first ever World's Parliament of Religions. The erudite Swami Vivekananda from India mesmerized the global audience with his Vedic notion of universal brotherhood. In the 20th century, Mahatma Gandhi's principles of truth and non-violence drew global attention yet again, inspiring leaders like Martin Luther King and Nelson Mandela. These are significant chapters in India's soft power narrative, a narrative that over the years has grown into a grand tale. Hi there, New York City. We do have lots of beautiful sunshine for you. Today, we're in the city of New York, trailing the thread of this narrative. Whatever culture you come from, whatever you look like, whatever part of the world, you want to be happy. And India has spent thousands of years refining the methods to enter into that space inside. But while spiritual seekers have often looked to India to provide them the tools and technology for well-being, today we find ourselves tracing this narrative in unexpected quarters. We're heading to Silicon Valley in California, home to some of the largest tech corporations in the world. We work in fairly demanding jobs, and much of what happens around the Googleplex is really innovating and solving some big problems out there using technology at scale. But in the midst of all of this, the most important technology that we all have access to, all 7.1 billion people, is right here. I call it our inner net, which is our body, our mind, our breath, our consciousness. Drawing from his Indian roots, Gopi instituted Yoglers, a yoga and meditation program for Google employees worldwide. So while Google is helping the world to connect on the outside, the power of this great Indian internet helps Googlers to reconnect within. For centuries, yoga has been known to harness the faculties of the mind, body and soul, providing a holistic approach to a being. On December 11th, in 2014, the United Nations General Assembly recognized the benefits of this timeless Indian practice and, on the behest of the Indian Prime Minister, declared June 21st as the International Day of Yoga. Over 150 million people across race, religion and continents came together and wrote a chapter in India's soft power narrative. Yoga had founded a universal language.
cutting across the barriers of language is yet another compelling chapter in the story of India, Bollywood. Today, we have trailed the thread of the Bollywood narrative to Stuttgart, the nerve center of the German auto industry. तुम पास से आए यूं मुस्कुराए. It was कुछ कुछ होता है, and this movie opened the doors to the Bollywood world, and so we bought one movie to the other, and Shahrukh is the best. René Lazar is a Shahrukhi, as the die-hard fans in Deutschland are called. Like them all, neither he nor his father Branko know Hindi, but thrive on the magic of Bollywood films that give them license to laugh, cry and love with abandon. Such is their passion that on weekends, shot by shot, the Lazar family meticulously recreate their favorite Bollywood musicals. Okay. Das Expression wie das Das gehst du rüber oder dann Emotionen, dein Gesicht und dann gehst du rüber zum Posen darüber. I loved. Oh my god. Location? कपड़े में वही है यार. I love this song. Not surprisingly, the German Shahrukh has taken social media by storm, notching up more than 500,000 hits. The exuberant song and dance fare that Bollywood offers knows no nationality. Glitzy award functions, festivals and premieres tour to countries as diverse as South Africa, China and Spain. The overwhelming response from the non-diasporic community only proves that Bollywood has travelled to their hearts and souls. But India boasts an amazing wealth of soft power resources. So today, we have set out to explore how Indian food has made inroads on the gastronomical map of the world. My name is Waheguru. I'm a Sikh, I'm white, and here I am in San Francisco serving dosas, which is a South Indian food. So while Waheguru Singh is spicing up the streets of San Francisco with South Indian dosas, we discover that in Britain, the Punjabi chicken tikka masala has found a place of pride on almost every pub menu. Indian food in UK is actually very, very famous. There were almost about 10,000 curry houses, which is quite a feat to have in a country like UK, which is such a small island. The food we do is basic and simple, but a good food. A pav bhaji, just a basic pav bhaji from my main dishes like chole bhature, which is such a Delhi thing. People love it. Across centuries, India's narratives and beliefs have enriched cultures even while absorbing and assimilating from others along the way. Buddhism is one of the most powerful ideas to have emerged from Indian soil. It traveled to southern and central Asia with monks and scholars and continues to endure there, dwelling in their scriptures, sculptures and souls. Buddhism is arguably the most powerful idea to have emerged from India, and an enduring influence. We have this Hindu-Buddhist tradition, very strong tradition, then centuries of Islamic influence, and then Western influence. I can't think of any other major civilization which has got all of that. So in cultural terms also, we are fabulously endowed. Over the years, Indian art forms, festivals and customs have coloured the culture and calendar of many countries around the world. The joy and spirit of togetherness that they represent have bound communities that come together to observe significant Indian festivals like Diwali that are celebrated even in the White House and 10 Downing Street. Behind this diversity of life is the Indian diaspora that has gradually grown in size and importance. They hold key posts and influence government policies in countries where they live, even as they nourish their roots back in India. So we are everywhere in some way confronted with a little India now. It's very hard to escape the magic of being Indian, for the real wisdom of India is in seeking to conquer the world through love, service and harmony.
it's the bhav, it's the feeling of connection. It seemed like India knew something that nobody else knew. बहुत मुश्किल नाम है। म्यूजिक भी अच्छा ना। हाँ इस बात का मैं पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि हम जब दूसरे मुल्कों में अपने कल्चर को देखते हैं ना तो वो हमें देखने का बहुत मजा आता है। अच्छा, मौसम ने क्योंकि शुरू में ही ऐसी बात कर दी है ना कि कल्चर को लेकर तो बहुत सारे कमेंट आते हैं ना, नहीं आपका और हमारा कल्चर सेम नहीं है, सिर्फ नॉर्थ में ऐसा पाया जाता है। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि चलो एक हिस्से में है तो सही ना, कि मिलते जुलते लोग हैं। तो आई थिंक मैं तो यही कंसीडर करूंगी कि हम लोग बहुत मिलते जुलते लोग हैं, चाहे और भी डिफरेंट कल्चर्स हैं, डाइवर्सिटी है इंडिया में काफी ज्यादा, बट एक हिस्से में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर तो हम लोग साथ में हैं। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के लोग जो है वो इंडिया में हैं, तो सब लोगों को यही लगेगा कि कहीं ना कहीं पर हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं उन चीजों को। बट आई डोंट नो कि जब मैं लोगों को इस तरह से देखती हूँ, बहुत खुश होते हैं, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। इमोशनल वो वाला नहीं कि आप क्यों, मतलब आपको क्या बुरा लग रहा है या क्या हो रहा है, वो इतना आपको अच्छा लग रहा होता है ना कि हर किसी के चेहरे पर आपको एक स्माइल नजर आती है, एक डिफरेंट तरह की जिंदगी, और ये नहीं लग रहा होता कि जी किसी तरीके की फ्रस्ट्रेशन है लोगों में। तो हालांकि ऐसा होता तो नहीं है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, बट मुझे ऐसा बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे खुश देखती हूँ, मुझे एक खुशी मिलती है उन लोगों को देखकर। और जैसे वीडियो स्टार्ट हुई, एक तो वीडियो बहुत ही खूबसूरत बनाई गई, आई मीन थ्रू आउट द वीडियो मेरे चेहरे पर स्माइल थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था देखना योगा से जिस तरीके से वीडियो स्टार्ट की गई। और वाकई में मैं कहूँगी कि योगा एक इंटरनेशनली अब लोग उसको इतना ज्यादा फॉलो करना शुरू हो गए हैं। और मैं ये बात देखती हूँ कि धीरे धीरे लोग जो है ना दोबारा से सनातन धर्म की तरफ आ रहे हैं। वो जो चीजें वहां पर डिस्कस की गई हैं, जो स्क्रिप्चर्स में लिखी गई हैं, उस चीज को लेकर लोग जो हैं वो मतलब जिस तरीके से पहले रिसर्च करते हैं फिर उसके बाद उसको फॉलो करते हैं। हाँ, अंग्रेजों की प्रॉब्लम ये है फॉरेनर्स की कि वो उन चीजों को डिफरेंट नेम के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं दुनिया को अभी भी, लेकिन ये है कि जो उनका एक्चुअल नेम है वो जो है वो लोगों को नहीं बताया जाता। बट ऑन द अदर साइड मुझे इंडियंस की ये चीज ये अच्छी लगती है कि वो लोग जो एक्चुअल नेम है उस नाम के साथ लोगों को बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं लोगों। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अभी हमने जो वीडियो देखी इसमें अगर आपको देखे तो इंडिया का जो है वो पूरी दुनिया पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है कल्चर की, अगर मैं बात करूँ उस लिहाज से। अभी वीडियो में आप देखे बॉलीवुड के बारे में डिस्कस किया गया। भाई बॉलीवुड से जो है ना बहुत सारे लोग जो है वो इंस्पायर हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग रिक्रिएट करते हैं बॉलीवुड की चीजों को। जैसे अभी हमने बात की, इसमें देखा कि शाहरुख खान सर के इतने बड़े फैन के उनकी चीजों को रिक्रिएट करके वो डाल रहे हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें योगा की बात की जाए, डिफरेंट जो है वो फेस्टिवल्स की बात की जाए, जैसे मैंने बीच में भरतनाट्यम भी देखा, फिर क्लासिकल डांस की भी जो है एक छोटी मोटी झलक बीच में आपको जो है देखने को मिली। तो अगर देखा जाए तो हर चीज आपको जो हमारे यहाँ पर होती रही है, हो रही है, वो आपको अब बाहर जो है ईमानदारी वाली बात के डिफरेंट नाम्स के साथ वो इंट्रोड्यूस की गई है। अब अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ तो नो डाउट यहाँ पे भी अगर देखा जाए ना तो
एक वो जो चीज़ है, एक जो पुराना ट्रेडिशन था ना, वो वापस आ रहा है, लेकिन अभी उसे एक डिफरेंट नाम के साथ जो है वो स्टार्टिंग में लेकर आ जाए। जैसे अगर हम होली की बात करें तो होली यहाँ पे भी सेलिब्रेट इस बार की गई है, लेकिन उसे नाम क्या दिया गया, फेस्टिवल ऑफ कलर्स का जो है नाम दिया गया। लेकिन ऐसा ऐसा क्योंकि यहाँ पे लोगों को ये चीज़ का पता है कि भाई बेशक फेस्टिवल ऑफ कलर्स इसे कह दिया गया, लेकिन है ये होली। लेकिन मैं ये बात करूंगी कि अभी यहाँ पर हर लोगों को इन चीजों को बड़ा टाइम लगेगा, बट अगर हम लोग फॉरेनर्स को देखें, फॉरेन कंट्रीज में, वेस्ट कंट्रीज में, वहां पर काफी ज्यादा इन चीजों को काफी टाइम से जो है वो फॉलो किया जा रहा है। और स्पेशली मैं बात करूंगी यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी की, कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मतलब आज जिस तरीके से हम लोग इस्कॉन को देखते हैं, हाँ, और हम लोग देखते हैं कि इतने सारे फॉरेनर्स जो हैं वो फॉलो करते हैं और जिस तरह से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल मैं कहूंगी कि उन्हीं की वजह से ये चीजें जो है वो देखने को मिलती है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रभुपाद जी की वजह से कि जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और जिस तरीके से, हालांकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम उन्होंने देखी, लेकिन अभी जैसे मैं देख रही थी कि जिस तरीके से एक मतलब जो एक हम कहेंगे हॉल था, उसमें लोग कनेक्ट कर पा रहे थे उस चीज के साथ, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि आपको ना सबसे अच्छी फीलिंग आती है जब आप कनेक्ट कर पाते हो किसी चीज के साथ। आपको नहीं पता होता कि आप किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कि कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जहां पर आप रियलाइज करते हो कि हाँ, मेरा इसके साथ कनेक्शन बन रहा है। बिल्कुल। और उसके अलावा मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूंगा कि जब किसी मुल्क में कल्चर जो है वो फलता फूलता है, तो उसके पीछे जो है ना एक बंदे की नहीं, बहुत सारे लोगों की जो है ना वो मेहनत होती है, लेकिन बीच में एक स्पेसिफिक बंदा ऐसा भी होता है जो कि उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करता है। वो जो है लोगों के दिलो दिमाग में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना उसे इंजेक्ट कहना ना कर देना, इंजेक्ट कर देता है कि क्या नाम लेते हैं, लोगों को समझ लगे कि ये चीज बेसिकली है क्या। बट आई थिंक मौसम उसके साथ साथ लोग जो है ना वो बड़ा मतलब उनका एक रोल होता है, और उसकी रीजन ये है कि अभी हम जितने भी इंडियंस को देखते हैं, मतलब अमेरिका में देख लो, यूके में देख लो, जहां पर भी बड़े बड़े शहर हैं, सब में आपको नजर आएंगे इंडियंस, लेकिन ये कि वो अपना कल्चर उन्होंने वहां पर उसी तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है। वो यहाँ फूड के माध्यम से, अपने फेस्टिवल्स के माध्यम से हर चीज को मतलब उन्होंने रखा है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी चीज ये है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल है। यानी कि आप उसमें आपको वो एक मतलब आपको कोई ऐसा नहीं नजर आता कि अगर कोई और बंदा है तो वो उसमें आके एडजस्ट नहीं हो पा रहा, या उसको अजीब लग रहा है, या आप उसकी तरफ फ्लेक्सिबल नहीं हो। तो ये चीजें बड़ी जो है ना दूसरे लोगों को अपनी तरफ मैं कहूंगी कि अट्रैक्ट करती हैं। और नो डाउट बॉलीवुड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कभी कभी तो सीरियसली मैं खुद ये बात सोचती हूँ कि हम लोग मूवीज देखते हैं, जो एक्टर्स हमें अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं खुद समझ आता कि एक ऐसी फीलिंग होती है इंसान की कि जो इंसान आपको अच्छा लगता है, आप उसको कभी देखते भी नहीं हो, रियल लाइफ में मिले नहीं होते, लेकिन उसकी प्रेजेंस से, चाहे पर्दे पे वो प्रेजेंस है, आपको खुशी महसूस होती है। और उसकी क्या रीजन है, ये कौन सी एनर्जी होती है, मुझे आज तक नहीं पता। उसके खुशी में आप खुश, उसके दुख में आप दुखी, तो ये जो है इतना मैं कभी किसी के साथ अटैच नहीं, इतना नहीं, अगर क्या नाम लेते हैं, ये हकीकत है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी दुनिया जो है वो होता है। हाँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस है, उनका मतलब एक्टर और एक्ट्रेस दोनों की शादी हुई थी और डिवोर्स हो गया, और उसके बाद उनके एक फैन की मौत हो गई, इसी बात की वजह से डिवोर्स हो गया। तो आपको इतना भी अटैच नहीं किसी के साथ होना चाहिए। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि आपका जो कल्चर है, आपकी जो ये सारी चीजें होती हैं, ये आपको लोगों को खुश रखने के लिए होती है, ना कि उनको इस साइड पर लेकर जाने के लिए होती हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे बहुत मजा आया। और दूसरा ये कि आई डोंट नो, मैं जब भी मतलब गौतम बुद्धा जी का स्टैच्यू देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, एक अलग ही मुझे मतलब असल में वो एक्सप्रेशन इस तरह के ना कि वो रिलैक्सिंग होते हैं, जो जिनके जितने भी आप उनके स्ट्रक्चर देखें ना, जितने भी स्टैच्यू उनके बनाए गए, जिनके जब हम तक्षशिला भी गए थे, तो उनका फेस जो है ना वो इतना रिलैक्सिंग फेस बनाया गया हुआ है ना कि वो आप देखते साथ ही आपको खुद भी ना एक एनर्जी फील होना शुरू हो जाती है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। उस टाइम पर जब आप उनका स्टैच्यू देखते हो ना, बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन बीच में जिस तरीके से भाई पंजाबियों वाला भांगड़ा भी दिखाया गया, खाने शाने भी दिखाए गए,
तो हर चीज़ जो है वो वाकई में आपको, मुझे लगता है कि आपका एक इन्फ्लुएंस बन जाता है लोगों के माध्यम से, और लोग अगेन मैं कहती हूँ कि फेस होते हैं कि अपनी कंट्री का वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बाहर के मुल्कों में। जब वो जाते हैं वहाँ पर रहते हैं, सेटल होते हैं, इवन कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो योगा को इस्तेमाल करती हैं एज अ टूल, अगर हम लोग कह सकें कि अपने आप को काम रखने के लिए, अपने आप को कनेक्ट करने के लिए एम्प्लॉयज को। हाँ एग्जैक्टली। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है और ये हर जगह पे हर ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। बट ओवरऑल बहुत खूबसूरत वीडियो थी, बहुत मज़ा आया, और जो टाइटल था वो भी बहुत खूबसूरत था क्योंकि वाकई में ये बाउंडलेस इंडिया है, जो जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। आपको हर तरह का कल्चर मिलेगा, आपको हर तरह का फेस्टिवल, हर तरह के लोग, हर तरह के ऐसे मैं कहूँगी कि आपको चीज़ें देखने को मिलेगी जो शायद आपने कभी कहीं और दुनिया में ना देखी हो। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।